Students, let us continue session number 2 in this ICT skills unit. The session 2 is dealing with performing basic file operations in computer. So what are basic file operations? So before it, you have seen in the figure there is a file cabinet. In any school or office, you must have seen this type of cabinet. In your staff room also, you have seen this type of cabinet in which the teacher has a separate cabinet for himself or herself, okay, where they keep the files of different student or classes on separate shelves. Similarly, information on a computer is stored in electronic files which can be put into separate folders. Okay, so why do we create these files and folders? Because it is easy to manage the files as they can be simply copied, moved, renamed or even deleted. So let us understand the concept. Concept क्या है कि the basic information will be stored in a file and file of similar types or relating to a particular fixed domain will be stored in a folder, and those folders can be grouped in another folder and collection of those folders becomes a drive. Okay, so your hard disk is divided into drives: C drive, D drive, E drive, F drive and so on. Inside those drive, what we have folders, and inside those folders we have subfolders, and inside the subfolders we have files that actually contain the information. Okay, so files and folders, all information stored in a computer is kept in files. The collection of files becomes folder. Different type of files store different type of information. जैसे वर्ड में अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सेल में अलग, पावर पॉइंट की फाइल्स अलग और आपका MP3 फाइल्स अलग, वीडियोस की फाइल्स अलग होती हैं. ईच फाइल इज़ गिवन अ फाइल नेम. हर फाइल का एक नाम होता है. जैसे हर स्टूडेंट का आपके क्लास में एक नाम है, वैसे ही हर फाइल को भी हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो नाम यूनिक होना चाहिए. दो फाइल्स के एक जैसे नाम नहीं हो सकते. ओके, थोड़ा बहुत उसमें डिस्टिंक्शन, थोड़ा चेंजेस लाने आपको ज़रूरी है. और हर फाइल नेम के साथ जुड़ा होता है एक फाइल नेम एक्सटेंशन, जिससे पता चल पाए कि ये फाइल किस टाइप की है. कैसे? जैसे जिसके लास्ट में .txt लगा होगा वो टेक्स्ट फाइल होगी, नोटपैड वाली. जिसके आगे .doc लगा होगा वो वर्ड की फाइल होगी. जिसके आगे .xls लगा होगा वो एक्सेल की फाइल होगी, एंड सो ऑन. ओके, सिमिलरली .mp3 मीन्स आपकी ऑडियो फाइल. So the extension is used to identify the type of the file. The file name and file extension के बीच में क्या होता है? There is a dot, that is called a period. Okay, जैसे आपने एक फाइल बनाई student.txt. Okay, तो student उसका नाम हो गया और txt उसका एक्सटेंशन हो गया, जिससे पता चल पाया कि ये एक नोटपैड की फाइल है. Okay, so there are various extensions like .doc, .xls, .ppt, .mp3. इमेज फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है मोस्टली वो .jpg होता है. सिमिलरली जो आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं दे हैव .mp3 एक्सटेंशन, एंड वीडियो फाइल्स हैव .mp4 और .vob एक्सटेंशन, एंड देयर आर वेरियस एक्सटेंशंस. And now we come to folder. Folder is a location where we group the files, or it is a folder is a location where a group of files can be stored. Clear? Very good. Now we have creating a file using a text editor. Here we have the example given for Ubuntu. Okay, but we will also discuss it for Windows. Okay, because you have worked on Windows. So when a student Neha joins a class, the teacher creates a file on computer to store Neha's information such as her name, address, phone number, etc. Let us create a new file using a text editor. Okay, इसमें Ubuntu का एग्जाम्पल दिया है, बट मैं आपको Windows के एग्जाम्पल देके इसको समझाऊंगा. So आपने सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर ऑन करना है. तो जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर विंडोज़ का होता है दैट इज़ कॉल्ड नोटपैड. ओके,
तो आपके जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें विंडोज़ में आपको मिलेगा, सर्चिंग के लिए जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आप लिख सकते हैं नोटपैड, या उसके लिए आप क्या कर सकेंगे, जो आपका विंडोज़ का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और उसमें एक रन का ऑप्शन होता है। अगर हम विंडोज़ के छोटे वर्जन की बात करें, विंडोज़ 7, ठीक है, तो उनमें हम शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी विंडोज़ में, दैट इज़ विंडो बटन प्लस आर। तो उससे हमारा एक रन मॉड्यूल खुल जाता है और उसमें हम लिखते हैं नोटपैड, तो हमारी एक नोटपैड की फाइल खुल जाती है। देखिए कैसे, विंडोज़ प्लस आर, तो जैसे ही हम विंडोज़ प्लस आर लिखते हैं तो हमारी ये नोटपैड की फाइल हमारा ये रन मॉड्यूल खुल गया और इसमें हम नोटपैड लिख के वी कैन ओपन दिस नोटपैड टेक्स्ट एडिटर, और हम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। और उसको अगर सेव करना हो तो हमारे पास ये फाइल मेन्यू है और उसमें हम इस सेव ऑप्शन में जाके उसको एक नाम देके सेव कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी ओपन अ टेक्स्ट एडिटर इन विंडोज। शॉर्टकट की यू मस्ट नो, विंडो की प्लस आर। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर उबुंटू के हिसाब से दिया है, आपने उबुंटू पे वर्क नहीं किया होगा तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे इसको विंडोज़ में ओपन किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एडिटिंग करने के बाद नोटपैड की फ़ाइल में आप फाइल मेन्यू में जाके सेव में जाएंगे और उस सेव डायलॉग बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा और आप उसको जहाँ भी चाहे, जिस फोल्डर में, जिस जगह पे चाहे उस फोल्डर में आप उसको सेव कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे .txt लिखा हुआ है और फाइल का टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी नाम लिखेंगे, मान लिया आप नेहा की इन्फॉर्मेशन सेव करें तो यू विल टाइप नेहा एंड यू कैन जस्ट सेव इट, तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी और उसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो यू कैन टाइप एनीथिंग अबाउट दैट स्टूडेंट and you can save it again. What is the shortcut key for save? That is Control S. Okay, so let's move forward because Ubuntu पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास आपने काम नहीं किया होगा। तो हम यहाँ पे कैसे फाइल ओपन करते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं वो हमने विंडोज़ पे देख लिया, आपने किया भी हुआ होगा। नाउ वी विल गो टू क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर इज ए लोकेशन वेयर वी ग्रुप द फाइल्स। ओके, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको किसी एक लोकेशन पे जाना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर ड्राइव पे जाना पड़ता है या किसी प्रीवियस फोल्डर पे जाते हैं और राइट क्लिक करके यू कैन क्रिएट, आपके पास एक मेन्यू ऑप्शन आएगा एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर देयर। ठीक है, तो आपके पास फाइल एक्सप्लोरर होता है, उबुंटू में भी होता है और विंडोज़ में भी होता है, एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर एनीवेयर यू वांट। आप इसको ट्राई करके देखा होगा आपने कई बार, और अगर आपके पास घर पे डेस्कटॉप है यू कैन ट्राई इट एट होम ऑल्सो। ओके, इट इज़ वेरी इजी। So this was all about this session, and you have to do these questions, multiple choice questions and descriptive questions. These are the multiple choice questions. The answers of this are hidden inside this video only. If you are not able to answer that, you can just revise it and you can again come to this question answer section. So these are the multiple choice questions, very easy, you know all these. Then you have subjective questions. Okay, and what we have learned that we can describe what are computer files and folders, and we can create a new file in a text editor, and we can type in the details and we can save the file. So this is what we have learned in this session. It was very easy. You have done it before in your computer practical classes also in your school, and you do it regularly at your home also. Okay, so we will be meeting in the next video lesson.